बेशक ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਵੀ ਜਾਣ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਨੀ ਭਾਬੀ ਭੂਬੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਰ ਜੀਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੱਸਾ ਪਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਬਗਜ਼ ਨੇ, ਹਾਸਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਬੇਅਕਲ ਨੇ। ਉਂਝ ਸਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਕਲ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਾਓ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਓ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ आमिर भाई ऐसी कोई गल है नहीं है, पता नहीं तुहानू क्यों फील हो रही है। बड़ा जबरदस्त काम जा रहा है, बड़ी फतूआत हासिल हो रही है और बड़ा माशाल्लाह मस्बत रवैया लोगों का। और असी माशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਫਤੂਆਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗਲੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। आस्ता आस्ता काफी बेहतर नहीं होना जा रहा काम, थोड़ा टाइम दियो और मजीद 2-4 महीने रुको तो सही। मैं तो इरादा कीता सी पक्का ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨਾ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪਿਕਅਪ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਸ ਸਿਰਫ ਰੋਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ 500 ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 500 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਯਕ ਤਰਫਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਓ, ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ।
ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਫਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਯਕ ਤਰਫਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜੋ, ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਚੁਗਣ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਚੁਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 500 ਯੂਰੋ ਗਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲੇ ਮਿਲਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਦਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 250 ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਡੁੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਵੀਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੁਖਲਿਸਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੈਂਡਾ ਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੋ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਣ, ਇਹ ਜੱਟ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 600 ਯੂਰੋ ਧਰੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 600 ਯੂਰੋ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਉੱਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਮਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਸ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਸ ਚੁਣਨ ਤਾਂ, ਵਰਨਾ ਟਰੁੱਥ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਲਸ ਬਣਨਾ, ਟਰੁੱਥ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣਨਾ।
ਕਦੇ ਆਦਾ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਚੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਮ अलैकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। मैं तो मेरा तो है कि इसको अब अंजाम, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बहुत लंबा हो गया ये मसला। ਲਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫੈਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਟਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਵਰਨਾ ਬੇਈਮਾਨ एटरुथ सिख जे बेईमान होते थले बैठे ने तो आते ने नहीं वो जो फिक्शन का लफज उन्होंने कहा मैं एक लिया नफस कॉइन करने लगा। 3 हफ्ते तो गल समझाता पे विकास, वो नहीं भी समझाण होंदी है। जिन्होंने सच्ची गल नहीं करनी उन्हें नहीं करनी। तुसां सच्ची गल कीती है, तुहाडी सच्ची गल करन दे नाल बहुत ज्यादा प्रैशर उन्हां ते पे है। वो मरन वाले होए ने, छुपदे फिरदे ने, गालां कड्डदे फिरदे ने, ते तुसीं इह ना कोई मामला लटके है। जिन्ना प्रैशर बनेगा, जिन्नी गल फैलेगी, जिन्नी लोगों तक दूर तक जाएगी, इन्हां दी असलीयत लोगों तक जाहिर होएगी, लोगों को पता लगेगा। इन्हां मैं कहा मुसलमानों ने एक वीडियो बना के चाड़ो, ये भी तो सारे हराम ने ना। इन्हां मैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई, सिकंदर मिर्जा साहब बैठे ने दसिया भी इस तरह वीडियो बनानी है। एक वीडियो रोज दी अपलोड करो बना के। ये भी आंदे ने टिकटॉक ऑन कर लो, गप्पां गुप्पां मारो ते अपना मूँह दी जिहड़ी उल्ली लाओ ते घरों घर। ये भी तो सही मुखलिस नहीं है पूरे की बंदा इन्होंने आखे। हर बंदा एक वीडियो रोज दी बना के चाड़े, मीर साहब पैसे दो, मीर साहब हवाला दो, मीर साहब सबूत दो, पैसे दो या हवाला दो या माफी मंगो। ए मीर साहब इल्जाम तुहाडियां वीडियो जिहड़ियां ने ज्यादा लोगों तक जांदियां ने, ज्यादा लोग देखदे ने। जिन्हें नहीं वेखिया वो भी देखो ना, डॉक्टर अहमद दी दादी फोटो सड़ी ला खड़ी है ना उत्ते, ते लोग उस वीडियो नूं रुक जांदे ने वेखण वास्ते कि एडे वड्डे IQ लैवल के बंदे दी क्यों फोटो लगी है, पिछे की कहानी सुनिए जरा। लोग सुनन बह जाते हैं, लेकिन थोड़ा दिल नहीं करता कोई हथी कोई काम करना पे, पर गली बाती है, गली बाती। डॉक्टर अहमद दीदाद के उत्ते भोंडा इल्जाम लगाया गया। इनू जिन्ना लम्मिया करोगे, जिन्ना इनू फैलाओगे, जिन्ने ज्यादा लोगों तक गल जाएगी, साडा ही फायदा पे होंदा। कोई मसला नहीं है, डिले नहीं पे होंदा, साडा ही फायदा पे होंदा। एटरुथ सिकर आ गया, कहता मैनू सालस बना लो। शेख साहब इन्होंने सालस बना लिए। पता नहीं, मैं कोई इन्हां दे बारे च राय नहीं कायम करता, लेकिन मैं समझना क्योंकि मामला जिहड़ा डिस्प्यूट है वो जिहड़े दो, मैं तो हुण यही समझना कि दोवां अफ्रीका चों कोई भी सालस ना होवे, एक तीजा थर्ड परसन जिन्हों कोई नॉलेज है और वो नहीं बिलोंग करता ना तुहाडी कम्यूनिटी नाल ना साडी कम्यूनिटी नाल, वो बंदा होना चाहिए ताकि कोई फैसला होवे। ठीक है गल तुहाडी। वो पहले दिन ही मैं इन्हां नूं जदों इन्हां ने चैलेंज कबूल कीता सी ते मैं उस दिन ही सर थर्ड कम्यूनिटी दे बंदे दिते सन, जोसेफ मसीह नूं ते तारिक चौहान नूं, 2 बंदियां मैं पेश कीता सी कि ये तारिक चौहान साहब ठीक है जो भी उन्होंने शख्सियत, लेकिन समहाउ उन्होंने जमात दे नाल ताल्लुक ते है ही ना हज़रत साहब दे नाल, ते ओ फिर वो हो जाता है कि उन्होंने ये लगता है कि भी क्योंकि उन्होंने नाल तुहाडा उठना बैठना बहुत ज्यादा है, समहाउ उन्होंने दिमाग में आंदा है कि शायद उन्होंने कोई हमदर्दियां, ये नहीं मैं कहता कि सच्ची गल है, लेकिन अगले दे दिल दिमाग हो सकता है ना कि भी इन्होंने नाल रोज उठना बैठना और साडी मुखालफत भी करते हैं। साडी तो मुराद खिलाफत वाली जमात वालियां दी मुखालफत भी रज के करते हैं, तो उन्होंने बारे दे विच ये सोचना मतलब है कि सोचा जा सकता है कि शायद गैर जानबदाराना फैसला है कि नहीं है या जानबदाराना है, समझ रहे हो ना। हो सकता है उन्होंने ना किया, उन्होंने ठीक फैसला किया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दिल में शुबात शकूक व शुबात तो पैदा हो सकते हैं। शेख साहब मैं उन्होंने ये नहीं आख्या कि जेडे मैं सालस पेश किए ने तुसीं इन्हां नूं कबूल करन दे पाबंद हो, नहीं वो अपने पेश कर लैन, लेकिन करन ते गैर जानबदार। एटरुथ सिकर कहता मैं आप सालस बनना है। हुण दसो की बंदा गल करे तो मेरे पास मैं देखे ना जो रियल लाइफ में जज है, बेहतर नहीं है उसी को जज बनाया जाए। रियल लाइफ का जज बादशाह लो टुट के पीछे गए सारे महीने भी कत्तियां दे शेख साहब।
एक ही जज भी तो मिल गया बादशाह। अच्छा जज साहब, आप जज भी हैं, आप जज भी हैं और वकील भी हैं, ऐसा ही है ना, दूसरे फरीक के वकील भी हैं। आप शेख साहब को कायल करें, हम सुनते हैं। मैं माइक म्यूट करता हूँ, आप इनको वो फिक्शन वाला जो है ना वाला दे के इनको समझाएं। देखें ये भी तो एक अवामी जज है, इन्होंने एक फैसला दिया है, इनके पीछे भी लगे हुए हैं। वो मोहम्मद अली भट्ट साहब ने आके इनको पर्सनल में कहा है कि क्यों आपने ये बात, तो आप इनको कायल करें, इनकी राय आप अपने हक में हमवार कर लें, तो भी तो कुछ ना कुछ तो आपका फायदा होगा ना। करें बात, आप सुनते हैं हम। मैं थोड़ी बहुत बात जरा बस भी नहीं करें, हम थल्ले ला दें। हफीज शेख साहब। जी जनाब जी। अच्छा, अगर आपने वो जो वीडियो है जो माइकल डगलस की अहमद इदा साहब के साथ डिबेट हुई है, वो देख के सुनी है? मैंने सुनी है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मैंने उसको इतना तफसील के साथ नहीं सुना, लेकिन मैंने सुनी है। हाँ जी, उन्होंने ना सलीम लतीफ़ मीर साहब ने एक इस वीडियो का बताया था, और दूसरा उन्होंने वो किताब क्रूसीफिक्शन और क्रूसीफिक्शन वो वाली बताई थी। जो ये वीडियो है ना, इसके शुरू में ही अहमद इदा साहब क्या कहते हैं, अब इनका मुनाजरा हो रहा है ईसाई के साथ, क्रिश्चियन है वो, ठीक है। सामने जो ऑडियंस है वो क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। वो उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले वो कुरानी आयात पेश करते हैं। जो स्टार्ट है ना वीडियो की, वो यहाँ से है, वो सूरह निसा की 157 आयत पेश करते हुए कहते हैं कि ये आयत कहती है कि ना वो उनको कत्ल कर सके, ना सलीब दे सके, बल्कि मामला शुबे में पड़ गया, ठीक है। अब उन्होंने शुबे में पड़ गया, इस पे ख़त्म करते हुए इन्होंने आगे एक्सप्लेन करना शुरू किया कि शुबा कैसे हुआ, ठीक है। उसमें इन्होंने कहा कि हम कहते हैं, इनके वर्ड्स हैं, हम कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो क्रूसीफिक्शन है ना, जो गोरे जो इंग्लिश वर्ड है क्रूसीफिक्शन, FIX मैं कहूँगा, ठीक है, क्रूसीफिक्शन जो रेगुलर वर्ड है। तो आयात पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि जो क्रूसीफिक्शन है ना FIX वाली, ये जो है ये इसका मतलब है कि स्लीप पे बंदा लटके और फौत हो जाए, ठीक है। स्लीप पे लटके और बंदा फौत हो जाए, इसे कहते हैं क्रूसीफिक्शन, जो रेगुलर वर्ड है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हुई। हम कहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि CRUCIFICTION, CT वाली, इसको मैं कहूँगा CT वाली क्रूसीफिक्शन, CT, ठीक है। कहते हैं ये CT वाली क्रूसीफिक्शन हुई है, ये हम कहते हैं। उन्होंने बाकायदा ये अल्फाज कहे हैं कि हम कहते हैं कि CT वाली क्रूसीफिक्शन हुई है। अब CT वाली क्रूसीफिक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ना कुरान से, ना कोई और किताबों से, बल्कि क्रिश्चियंस की किताबों से ही पहले जो है ये चीज़ें देखते हैं कि ये जो क्रूसीफिक्शन है, इसको क्या है, मतलब ये फिक्शन से वर्ड लिया गया। फिक्शन का मतलब बहुत अफसाना, लेकिन ये इस अफसाना क्या पर्टिकुलर अफसाना है, इसको समझने के लिए हम कुछ इनकी किताबों से देखते हैं, फिर यानी बाइबल से देखते हैं। तो उन्होंने फिर बाइबल के हवाले देने शुरू किए, जिसमें ये शो किया गया था कि सलीब के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों के साथ खाना भी खाया, मछली खाई, उनको उनके ज़ख्म ये भी है कि उनको मरहम पट्टी की गई, उनको मरहम ईसा जो है वो इस्तेमाल की गई। जो ये सारे हवाले बाइबल में मौजूद हैं, जिससे उन्होंने ये बताया कि वो जो हैं फौत नहीं हुए बाइबल के मुताबिक। फिर वो आगे उन्होंने कहा कि कुछ रिचुअल्स बताने शुरू किए, और रिचुअल्स में उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ रिचुअल्स करते हैं कि ख़ुद भी स्लीप पे लटक जाते हैं, बंदा स्लीप पे लटका रहता है और ज़िंदा होता रहता है। तो उन्होंने फिर कहा कि ये जो काम है कि बंदा स्लीप पे लटका रहे और फौत ना हो, ये रेगुलर जो क्रूसीफिक्शन है, जो इंग्लिश का वर्ड है FIX वाला, ये चीज़ नहीं है,
क्योंकि ये चीज़ अगर होती तो वो उसका मतलब है कि बंदा स्लीप पे लटके और फौत हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि इसका जो स्लीप पे लटके और फौत नहीं हो उसके लिए कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, और उसके लिए मैं वर्ड कॉइन करता हूँ जो FICT वाला यानी CT वाला क्रूसीफिक्शन है। मैं ये वर्ड कॉइन करता हूँ किसके लिए, कि जो स्लीप पे लटके और फौत ना हो। अब बिल्कुल याद करें अब, और ये जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं शुरू के 5 मिनटों में, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था आयात कुरानी आयात पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि FIX वाली क्रूसीफिक्शन नहीं हुई, हम कहते हैं कि CT वाली क्रूसीफिक्शन हुई। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि वो जो अफसाना है वो क्या है, उसके लिए जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि CTI, हम से क्या मुराद है, कौन कहता है? ये अहमद दीदार साहब ने कहा, यानी कि हमसे मुराद वो और मुसलमान। उन्होंने कहा वी से, इंग्लिश में था वी से। उन्होंने कुरानी आयात पेश करने के बाद ना उन्होंने कहा कि ये एक कुरान कहता है कि मामला शुबे में पड़ गया। अब शुबे में कैसे पड़ा, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि CT वाली क्रूसीफिक्शन हुई है, FIX वाली क्रूसीफिक्शन नहीं हुई। CT वाली क्रूसीफिक्शन को उन्होंने कहा कि ये एक अफसाना है, लेकिन किस किस्म का अफसाना है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसके लिए उन्होंने पहले कहा कि हम थोड़े से वाक़यात देखते हैं, जिसमें उन्होंने बाइबल से कुछ इक़्तिबासात भी निकाली, फिर इनके रिचुअल्स भी निकाले, और फिर आगे जाके उन्होंने बताया कि अब CT वाली क्रूसीफिक्शन जो मैंने शुरू में कहा था कि V से CT वाली क्रूसीफिक्शन है, वो फिर क्या है। फिर उन्होंने आगे जाके जो ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर 53 मिनट पे जाके उन्होंने कहा, फिर क्लियर किया। शुरू में उन्होंने कह दिया कि CT वाली क्रूसीफिक्शन हुई है, वो क्या हुई है उसको एग्जैक्ट एक्सप्लेन किया, पहले वाकयात सारे बताने के बाद 1 आवर 53 सेकेंड पर उन्होंने आके कहा कि CT वाली क्रूसीफिक्शन क्या है। ये एक मैंने वर्ड कॉइन किया है इस चीज़ों के लिए कि बंदा स्लीप पे लटके और फौत ना हो, और ये जो है ये CT वाली क्रूसीफिक्शन है जो मैं कॉइन कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है। ये उन्होंने कहा और उसको सारा फिर एक्सप्लेन भी किया कि जैसे एक और एग्जांपल थी कि जैसे फिलीपीन में कुछ लोग लटके स्लीप पे 20 मिनट लटके रहे और उतर आए और आके उतर के फिर सिगरेट पी रहे, अब इंसान जिंदा है। तो इसके लिए उन्होंने CT वाली क्रूसीफिक्शन को फिर एक्सप्लेन किया कंप्लीटली, और उससे पहले बिल्कुल शुरू में उन्होंने कह दिया था कि हम जो मामला शुबा में पड़ गया उसके लिए हम ये कहते हैं कि CT वाली क्रूसीफिक्शन हुई है। उसके बाद फिर इसी वीडियो में 1 आवर 56 मिनट पे फिर आगे क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहे थे, उसमें 1 आवर 56 मिनट पे उन्होंने क्वेश्चन के आंसर देते हुए कहा कि जो ये बात है ना कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, कि कोई और बंदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह कोई और बंदा स्लीप पे लटकाया गया है, ये चीज़ नहीं हुई। कुरान मजीद ये नहीं कहता कि उनकी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट किया गया और उसको स्लीप पे चढ़ाया गया, ये कुरान मजीद नहीं कहता। ये कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बना ली ये बात, लेकिन कुरान मजीद ये नहीं कहता। इसको भी उन्होंने फिर डिनाई किया। वो 1 आवर 56 मिनट पे उन्होंने आके ये कहा। तो उसमें आप YouTube पे अगर सर्च करें माइकल डगलस वर्सेस अहमद दीदार साहब की वीडियो आपको मिल जाएगी, और फिर उसको देखिएगा। शुरू के 4-5 मिनट देख लीजिएगा, देखना है तो ऐसे तो पूरा देखें तो बेस्ट है, लेकिन अब शुरू के 5-6 मिनट में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 1 आवर 53 पे आके उन्होंने फिर सारे वाक़यात बताने के बाद एक्सप्लेन करते हुए, जैसे कोई टीचर अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है ना, पहले अपनी टर्म जो कॉइन वो कर रहा है, जो वो मानता है CT वाली क्रूसीफिक्शन, उन्होंने कह तो दिया कि CT वाली क्रूसीफिक्शन हम मानते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फिर सारे वाक़यात और सारी चीज़ें बताई, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं चूज़ इसलिए कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट यही है कि मैं बाइबल से चूज़ करके, ताकि मैं कुरान की बात प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल से मैं प्रूव कर रहा हूँ कि जो कुरान कह रहा है वो ठीक है। और जो हम मानते हैं CT वाली क्रूसीफिक्शन, ये हम इन आयात से CT वाली क्रूसीफिक्शन मानते हैं, वो क्या है मैं उसके लिए बाइबल के हवाले दे के आपको शो करता हूँ। फिर उन्होंने बाइबल के हवाले दिए, बाइबल के सारे हवाले देने के बाद फिर उन्होंने बताया कि अब CT वाली क्रूसीफिक्शन क्या हुई कि स्लीप पे लटका और इंसान फौत नहीं हुआ।
जी। तो इससे इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि ये उनका अपना फेथ भी यही है, उनका ज़ाती फेथ, या वो इज्तिमाई तौर पे मुसलमानों का बता रहे हैं? क्योंकि ये मुझे जो समझ आती है कि आमन नज़ीर साहब का मुतालबा ये है कि अहमदीदात के वो वर्ड उनके मुंह से, कि जैसे मैं कहूँ कि जी ये मेरा भी यही अकीदा है। नहीं, ये यहाँ पे वर्ड फंसा हुआ है ना। नहीं, ये जो वर्ड्स है ना कि एग्जैक्ट वर्ड्स है कि मेरा भी अकीदा है, ये इस तरह नहीं है। बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि ये शो कर दें कि अहमदीदात साहब का ये अकीदा हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लीप पे लटकाया गया, लेकिन स्लीप पे फौत नहीं हुए। जी हाँ, ये है कंसाइज बात। उसके लिए इन्होंने अहमदीदात साहब ने जब क्लियरली कह दिया, कुरान मजीद की आयत पेश करने के बाद मामला शुबा में पड़ गया, जब ये तर्जमा किया उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि सीटी वाली क्रूसीफिक्शन हुई, और आगे जाके उन्होंने सीटी वाली क्रूसीफिक्शन को बताया कि ये है कि किसी बंदे को लटकाया जाए, वो फौत ना हो, क्योंकि इसके लिए कोई टर्म नहीं है इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो मैंने ये टर्म ऐड की है जो सीटी वाली क्रूसीफिक्शन, जिसका मतलब है बंदा लटकाया गया लेकिन फौत नहीं हुआ। ठीक है, तो जब उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम ये कहते हैं, और फिर उसको एक्सप्लेन करते करते फिर उन्होंने एंड में सारे वाक़यात भी बताए, और फिर एंड में पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि ये है सीटी वाली क्रूसीफिक्शन। तो ये आमन नज़ीर साहब, इनकी वजाहत से आप क्या समझते हैं? मुझे तो समझ आई है, मैं तो समझा हूँ इनकी बात को, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी इसमें ये कन्फ्यूजन ज़रूर समझ आ रही है कि अहमदीदात साहब अपना ज़ाती अकीदा बयान कर रहे हैं या आम मुसलमानों का बयान कर रहे हैं, रेफरेंस उसका दे रहे हैं या अपना? आपको क्या इसमें मसला, मतलब प्रॉब्लम है समझने में? मेरे ख्याल अहमद नज़ीर साहब कहीं चले गए। देखें, बात यह है हफीज़ शेख साहब कि हमने ये शो करना है, उन्होंने उनके जो अल्फाज हैं वो उन्होंने जब कह दिया, अब आगे से हम खुदा तो नहीं है ना कि हम सोचें कि उन्होंने क्या उस वक़्त उनको क्या प्रेशर था, उस वक़्त अकीदा कुछ और था, बाद में अकीदा चेंज कर लिया, या उन्होंने एक ख़ास मकसद से लोगों की वाह के लिए थोड़े देर के लिए ये बात कह दी। हमें क्या पता उनके दिल में क्या है। हमने उनके अल्फाज जब उन्होंने ये कह दिए कि वी से कि ये सीटी वाली क्रूसीफिक्शन हुई है, कुरान मजीद की आयात पेश करने के बाद मामला शुबा में पड़ गया, वो तर्जमा करने के बाद उस शुबे को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि वी से इट्स सीटी वाली क्रूसीफिक्शन। वी से मीन्स व्हाट? वी से मीन्स अहमदीदात साहब, उसमें वी में अहमदीदात साहब शामिल हैं, वी में अहमदीदात साहब से के साथ दूसरे मुसलमान भी शामिल हैं जो अहमदीदात साहब की सोच से हम आहंग होंगे, बट वी में अहमदीदात साहब तो लाजमी शामिल है। नहीं, लेकिन कल भी मैं सुन रहा था उनको, मोहम्मद अली भट्ट साहब को, वो एक ब्रॉड पे जमात की ब्रॉड थी, उसी पे वो ये बात दोबारा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे पास भी वो हवाला मौजूद है जिसमें अहमदीदात साहब ने अपना ये अकीदा बयान किया, अपना से मुराद ये कि जैसे एक बंदा कहता है कि मेरा ही है, और वो कहने लगे कि मीर लतीफ़ साहब के पास भी ये है, लेकिन अभी हम इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन अब उसके पीछे क्या उनकी वो क्या कहना चाहिए कि हिकमत अमली है या क्या वो समझते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात क्योंकि ये चीज़ जो आप बयान कर रहे हैं ये तो दिखा चुके हैं, इसका मतलब है कि आपके पास देयर इज समथिंग न्यू जो दूसरों के पास नहीं है। आप हाँ, मेरे पास बजाते खुद मेरे पास और भी हवाले हैं, ठीक है, लेकिन और उनके पास इससे ज़्यादा हवाले होंगे लाजमी। मैं जो आपको बात पेश कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि इस हवाले में देखें, वी से और आई से, आप कह रहे हैं कि वर्ड आई से होना चाहिए, वी में आई इज इंक्लूडेड। वी में, वी का मतलब है हम,
नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं वो आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब मैं वी वाला हवाला पेश कर दूं और मैं कहूँ कि ये फाइनल है, इसके बाद और कुछ नहीं है, वी में आई भी शामिल है, लेकिन अगर मैं वी वाला हवाला पेश करने के बाद कहूँ कि मेरे पास एक और चीज है जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ अहमदी दाद साहब की तरफ से, वो मैं वक्त आने पर डिस्क्लोज करूंगा, इट मीन्स दैट कि आपके पास समथिंग डिफरेंट है अदर देन दिस जो आप पहले प्रोवाइड कर चुके हो। उसकी रीज़न ये है, उसकी वजह ये है कि अगर देखें ना, अगर किसी का कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर सवाल हुआ या कोई और कोई काउंटर हवाला पेश किया जिसको डिनाई करने के लिए, वैसे तो ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए अगर किसी को कोई हवाले को जो मुखालिफ साइड से आया है उसको डिनाई करना है या कोई ऐसी बात है, तो उसके लिए वो हवाले हैं, लेकिन ये हवाला वैसे बजाते खुद ही काफ़ी है। बात यह है, देखें अपना ट्रूथ सीकर साहब, अभी जो पार्ट 2 उनकी तरफ से रिलीज हुआ है, वो जो आया मैंने भी उसको कम्प्लीटली सुना है। बात तो ये है कि जो जिन बंदों के साथ इनका इशू चल रहा है वो कहते हैं कि जी हमने बकर ज़ैद, कोई इंडिया का एक मुसन्निफ है उसने ये लिखा है, पाकिस्तान का एक है उसने, अरब मिडिल ईस्ट का एक है उसने ये लिखा है। बात तो ये है कि मैं वो वजाहतें तब करूं जब दूसरी पार्टी उनको एक्सेप्ट करे। मतलब मैं 1.5 घंटे की एक वीडियो बना दूं, जी बकर ने ये कहा, ज़ैद ने ये कहा, उसने ये कहा, वो कहा, और वो इतना मेरी मेहनत भी लगे, और उसके बाद आमर नज़ीर साहब मुझे सिंपल एक जुमला कहेंगे, जी मैंने तो इनकी बात ही नहीं की जिनकी आपने 3 घंटे की वीडियो बना के मुझे भेज दी है। हाँ, नहीं, वो तो आपकी मेहनत जाया कि आपके मीर साहब के दरमियान है। मैं तो सिर्फ आपने क्योंकि एक राय दी थी, आमिर नज़ीर साहब ने जो आपको, क्योंकि वो तो रोज़ हर एक से बात कर रहे हैं, तो इसी तरह आपसे बात करते उन्होंने आपसे राय ले ली थी, तो इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ पेश कर रहा हूँ। आप उसको जाके देख लीजिएगा, उस वीडियो को यूट्यूब पे इजीली सर्च हो जाएगी। शेख साहब हो गया, मैं अभी आया हूँ जरा फारग, शेख साहब कायल हो गए, तो इसलिए मैं पेश करूँ, लेकिन वो तो इनके दरमियान, इनकी और लतीफ़ मीर साहब के दरमियान वो तो लहदा बात चल रही है। शेख साहब कोई दलील वेखी तो ट्रुथ सीकर साहब को नहीं, उन्होंने जो चीज़ एक्सप्लेन उन्होंने अच्छे तरीके से किया है, लेकिन मैं जो समझा हूँ मैंने उनको यही कहा है कि भाई वो कहते हैं कि अहमदी दाद साहब ने अपनी वीडियो में वी बिलीव का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वी बिलीव, तो वी का मतलब है कि वो भी उसमें इंक्लूडेड है। वो वीडियो प्ले करें, इनको कहें वो वीडियो प्ले, वी से जो भी, मतलब उन्होंने वी का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जी हम ये कहते हैं। हाँ, जब मैं कहूँ, हम जैसे ग्रुप में बैठे हुए हैं, मैं ये सब की तरफ से कहूँ या हम सब का ये मौक़िफ़ है, इसका मतलब ये है कि मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ जो ये वजाहत करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने इन्हें यही कहा, मैंने कहा नहीं, वो क्योंकि जो मोहम्मद अली भट्ट साहब ने मुझे जो लास्ट में भेजा थे मैसेज, और उसके बाद मैंने उनको एक ग्रुप में सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास और मीर लतीफ़ साहब के पास अहमदी दाद का वो हवाला भी मौजूद है जो यानी कि आपकी डिमांड है आमिर नज़ीर साहब की, लेकिन वो हम अभी नहीं पेश करेंगे। उन्होंने कोई इसका वो डेडलाइन नहीं दी, महीने बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, उन्होंने कहा वो वक्त आने पर पेश किया जाएगा। अब मुझे वो मसलियत समझ नहीं आती कि वो कौन सा वक्त है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। उसका इंतज़ार इसलिए किया जा रहा है कि ये मुनसिफ जो है ना, इस पे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि मुनसिफ कौन होगा, क्योंकि इन्होंने आमिर नज़ीर साहब ने अपने कज़न को पैसे जमा करा दिए थे गारंटर के तौर पे, तो सबका ख्याल यही था कि वही मुनसिफ होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको मुनसिफ बनने से मना कर दिया। तो वो तो फिर इसलिए मामला जो है ना इतना लंबा हो गया कि वो जब आपने पैसे जमा कराए, आपको इतना एतबार है, आपने अपने उनको एज ए गारंटर पैसे जमा करा दिए हैं, तो आप उनको एज ए मुनसिफ एक्सेप्ट भी कर सकते थे, हैं भी वो आपके रिलेटिव है। तो असल प्रॉब्लम यहाँ पे आई भी है कि मुनसिफ कौन होगा। अब चूंकि मेरा तो आपको पता है जमात लाहौर से ताल्लुक है, आप मैं तो इन लोगों से इन कांटेक्ट में नहीं हुई, इस रब्ते में आप तो हैं, आप उन्हें ये पूछे अहमद अली साहब को कि भाई जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके पास भी मौजूद है और मीर लतीफ़ साहब के पास भी मौजूद है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार किया जा रहा है, अब उससे पहले अगर कोई पता नहीं कितने पार्ट आएंगे, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा,
हर बंदा यही सोचता रहेगा यार वो आखिरी पार्ट कब आएगा, जब ये भेद खुलेगा, आखिर ये ऊंट किसी करवट बैठेगा, वो दिन कब आएगा। तो उतनी देर में तो ये चलता रहेगा। ये देखते हैं आप इसका नतीजा ठीक तो नहीं है। तुलसीकर साहब अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ हो रहा था, बातें हो रही थी, फिर वो बात में गालम गलौज तक, तेरी माँ तेरी बहन, ये वो फलाना वो, ये इसका मतलब है कि इस चीज को तकवीयत दी जा रही है, इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है कि यार इनको पहले लड़ लेने दो अच्छी तरह, जब ये लड़ लोड़ के नढाल होके दोनों पार्टियां गिर जाएंगी फिर हम वो सच सामने लाएंगे। समझे? हाँ जी, बात वही है ना कि एक मुनसिफ का फैसला नहीं हो पा रहा ना कि मुनसिफ कौन होगा, कौन ये डिसाइड करेगा। इसीलिए अभी मैंने यही कहा है, क्योंकि जब तक मुनसिफ हमसे मुराद है जमात अहमदिया में से, या अगर हम यहाँ से इनकी में से किसी को बना देते हैं तो ये तो वही होगा, जारी बात है। जब हमारे हक में फैसला होगा तो ये लोग कहेंगे नहीं जी वो बंदा इनका था, इनके हक में होगा हम कहेंगे नहीं जी उनका। तो फिर एक तीसरा बंदा जिसका ना ताल्लुक हमारे से हो ना इनसे हो, और वो उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, तो फिर ही हो सकता है। मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि तारिक चौहान, मैं उनकी शख्सियत पे नहीं शक कर रहा, लेकिन समहाउ उनका ताल्लुक अमन नज़ीर साहब से, मलक कैसर साहब से आना बैठना, हर वक्त उनके साथ रहना, तो वो दिल में ये हो जाता है कि शायद यार उनका बेशक जमाती रिलेशन नहीं है, लेकिन एक दोस्ताना ताल्लुकात तो हैं, तो शायद उस दोस्ताना ताल्लुकात में कोई फेवर दी गई है। ये शक तो हो सकता है इंसान के दिल में। तो लिहाजा फिर एक ऐसा बंदा हो जिसके बारे में शक ही ना हो, जैसे ये अमन नज़ीर साहब कह रहे हैं, जोसेफ मसीह, मैं नहीं जानता हूँ उनको, वो ना कभी इतना मैंने उनको ब्रॉड पे देखा है कि मैं कहूँ कि नजर आते रहते हैं हम लोगों की तरह। तो मेरा ख्याल है ऐसा बंदा जो कभी कभार आता है, जो ना आपके साथ इतना अफिलिएटेड है ना इनके साथ है, वो बंदा बेहतर होगा मेरा ख्याल है। जी देखिए पीर शेख साहब, देखिए आप लाहौरी जमात से हैं, अब तारिक चौहान साहब जो हैं वो जब्बा ग्रुप से हैं, लेकिन आप, मैं कहूँगा कि आपसे मैं मतलब बड़े आप बाखलाक हैं, बड़े आप नेक सिफ्त के लगते हैं। तारिक चौहान साहब के बारे में अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है। वो मतलब हर वक्त जो है वो एक किस्म का बोझ उनके नज़र आता है उनके अंदर, लेकिन आप में माशाल्लाह मैंने देखा है कि बड़ी अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान की, एक नेक सिफ्त इंसान की जो है वो खुशबू महसूस होती है। तो लेकिन इसके बावजूद मैं कभी भी ये नहीं समझूंगा कि कोई मेरे बारे में या मैं अपने बारे में कहूँ कि जी आप मुझे मुनसिफ बना लें। मैं तो ना कोई दावा करता हूँ शरीफ होने का, गुनाहगार इंसान हूँ जिस तरह हम हर बंदा होता है, लेकिन फिर भी कि जी मैं बड़ा अच्छा हूँ तो आप मुझे मुनसिफ बना लें, मुझे सालस बना लें, नहीं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी समहाउ हजरत मसीह मौद से तो है ही है। तो मैं हो सकता है कि जी फेवर दे दूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब इस मामले को वाइंड अप होना चाहिए, और कोई ऐसा बंदा जिसका ना ताल्लुक हमसे हो ना इनसे हो, लेकिन वो बंदा अच्छे किरदार का, अच्छे किरदार से मुराद ये है कि शरीफ इंसान हो और हक सच की बात करने वाला हो। बिल्कुल। और कई दफ़ा ना वैसे ये जो जज जो होता है ना, ये कई दफ़ा इसकी एक थोड़ी सी वैसे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होती है। अगर आप कई दफ़ा अपनी तरफ से आप हक बात भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे अगले से सवाल करना है, कैसे अगले की बात समझनी है, वो सेंस भी हर एक में नहीं होती, यानी हर एक जज नहीं बन सकता। तो मैं तो बजाते खुद कहूँगा कि जिनका कोई जो एक्चुअल में कोई जज वगैरह है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगी, बजाय इसके कि ठीक है बड़े लोग हैं जमात में भी और दूसरे जो फ़िरके हैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हक की बात करेंगे और हक पे रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो एक सेंस होती है ना कि अगले ने बात मुकम्मल कर ली है कि कुछ रह गई है और फिर काउंटर सवाल करते हैं जज, उनको आइडिया नहीं होता, तो पूरी बात जो है वो समझ नहीं पाते इस वजह से। इसलिए जज भी कोई ऐसा होना चाहिए जिसको थोड़ा सा, लास्ट टाइम जो जिसका डिसीजन किया तारिक चौहान साहब ने, मैंने वो सारी कार्रवाई बजाते खुद मैं भी सुन रहा था नीचे बैठ के सब कुछ, तो उसमें मैंने ये देखा था कि एंड में तारिक चौहान साहब ने वजाहत की थी दोनों को
कि भाई अब इतना इतना टाइम में आप दोनों को, और ये आपके आखिरी यानी कमेंट्स होंगे, रिमार्क्स जो भी आपने देना, आर्गूमेंट्स आपके आखिरी होंगे, और उसके बाद फिर मैं फैसला करूंगा कि जो भी फैसला करना है। तो अब उसमें अपना जो थे वो कालू साहब थे, उन्होंने अपने बयान कर दिया आर्गूमेंट्स, और उसके बाद मेरा ख्याल है शायद दूसरे जो थे साहब, क्या नाम है, ज़ियाद रसूल साहब, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स बयान किए। अब मसला ये है कि आपको पता है कि आप कहते हैं कि जी आप भी समहाउ रिलेटेड हो, कोई जज हो या जो भी इलेक्शन के या इसके जो भी है, जब आपको आम अदालतें जो होती हैं उसमें एक दफ़ा जज कह देता है कि भाई आप अपने आर्गूमेंट्स, लास्ट आर्गूमेंट्स बयान कर दो, तो उसके बाद मैं दूसरी पार्टी को कहूँगा वो बयान कर, फिर मैं कोई फैसला करूँगा। अब मैं अपने आर्गूमेंट्स बयान करके 5 मिनट 10 मिनट नीचे उतर जाता हूँ और मेरी बारी, इसका मतलब है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं दोबारा ऊपर आके अपने आर्गूमेंट्स, क्योंकि जज ने मुझे बता दिया कि भाई ये लास्ट तुम्हारे आर्गूमेंट्स हैं, इसके बाद तुम नहीं होगे, दूसरा होगा। और अब जब मैं नीचे चला गया हूँ, दूसरा बंदा ऊपर आ गया, ज़ियाद रसूल साहब ऊपर आ गए हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स शुरू कर दिए हैं। अब उनके आर्गूमेंट्स में मुझे समझ आता है, हो यार इसने ये बात की है, इसका तो मैंने जवाब अपने जो आर्गूमेंट्स है उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन, मुझे राइट होने, मैं नीचे लिखना शुरू कर देता हूँ कि जी मुझे राइट दो, मैंने कोई बात करनी है, मैंने कोई माना कि आपको वो बात उस वक्त नहीं ज़हन में थी, अब उनके दलाइल सुनते हुए वो बात आपके ज़हन में आ, उसमें आप ये नहीं कह सकते यार मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे सुना नहीं गया। हाँ, उसमें ये है कि अगर जज फैसला सुना देता है और उसके एंड में कह देता है कि जी यू हैव अ राइट ऑफ अपील अगेंस्ट दिस डिसीजन, उस अपील में आप वो बताओगे कि जी इन्होंने अपने लास्ट आर्गूमेंट में ये बात करते हुए ये बयान किया था, उसका ये जवाब है। लेकिन वहां पे अब आपके पास मौका चला गया है और अब जो फैसला होगा वो आपको तस्लीम करना होगा। आप उस चीज को बेस नहीं कर बनाओगे जो आप बयान करना चाह रहे थे, क्योंकि वो टाइम चला गया। आप बयान कर सकते हो, आप उसको डिफेंड कर सकते हो, लेकिन अपील में वहां नहीं। ये मैं समझता हूँ। जी, उसमें एक बात और है कि जो जज जो फैसला दे दिया आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जज ने आपके खिलाफ भी फैसला दिया, आपने एक्सेप्ट करना है। हाँ, आप डिसीजन पे क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको फैसला मानना है। लेकिन बात वहाँ पे ये थी कि उन्होंने अपील का एक्सेप्ट करने के बाद अपील के दौरान जब जैसे कालू साहब जब आए हैं तो जज साहब नहीं आए। अब जज साहब अगर बाद में आए हैं और वो उसको मौजूद थे लेकिन ऊपर नहीं आए किसी वजह से, वो ब्रॉड वालों की गलती थी इसकी, लेकिन अगर वो जब ऊपर आए हैं उन्होंने ये देखा था कि कालू के सीकर साहब आप पूरी बात करें ना, कालू साहब को आपके बंदे ने ऊपर लिया, जज को अली बात तो करने ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जज साहब 2 घंटे बाद ऊपर आए हैं, उनको पता था कि जब कालू साहब के होते हुए ब्रॉड वाले का अगर कसूर था, उन्हें ऊपर नहीं लिया, तो उन्होंने ये देखा ना, तो उनका काम यही बनता था कि वो जब 2 घंटे बाद आए हैं उनको फिर अपील को एक्सटेंड करना चाहिए था। ये सारा देखते हुए उनको चाहिए था कि जी मैं उसके होते हुए मुझे ऊपर नहीं लिया गया, तो मैं अब इनको दोबारा उनसे टाइम सेट करूंगा रिव्यू का, क्योंकि उनको रिव्यू का पूरा हक नहीं दिया गया। तो ये बात बनती थी, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर करके तो खिलाफ डिसीजन दे दिया जो कि ज्यादती है। तो और इसके हिसाब से जो आपका डिसीजन है ना, वो एक किस्म का वॉइड हो जाता है, कलअदम हो जाता है। लेकिन तुलसीकर साहब, क्या ये दौराने समाअत जो केस चल रहा था उसमें ये तय हुआ था कि फैसला जो भी हो, चाहे वो जमात अहमदिया के हक में हो या उसके खिलाफ हो, दूसरों के हक में हो, उनके खिलाफ हो, क्या ये तय किया गया था कि उस फैसले के खिलाफ वो जो भी होगा रिव्यू या राइट ऑफ अपील होगा? ये तय किया गया था। अगर नहीं भी होता राइट ऑफ अपील, आपको पता है कि फिर उस सूरत में क्या होता है, जब अदालत आपको राइट ऑफ अपील नहीं देती तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस फैसले के खिलाफ आप अपील कर ही नहीं सकते हो। आप उससे ऊपर वाली अदालत में जाते हो, वहां पे अपना खर्चा करके दोबारा से अपील दायर करते हो और फिर वो आपका मुकदमा चलता है। तो कहने का मतलब ये कि मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी कि उस दौरान मुकदमे के समाअत के दौरान ये बताया गया था कि भाई, या जज ने जब आखिरी फैसला सुना दिया तो उसने कहा कि जी ये मेरा फैसला है
और अगर किसी को इतराज है तो वो 1 दिन में 2 दिन में इसके खिलाफ राइट ऑफ अपील या रिव्यू की दरखास्त दे सकता है। उस वक्त तक ये मेरा फैसला है। फिर तो बात थी, लेकिन ऐसे कोई मसला हुआ ही नहीं ना, इस वजह से तो ये झगड़ा बढ़ गया। यही हुआ था हाफिज शेख साहब, यही हुआ था। उन्होंने रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया था कि रिव्यू के लिए उन्होंने अलहदा सेशन कॉल कर लिया था। तारिक चौहान साहब हुआ सेम डे। ये तो पता क्या होना चाहिए था, ये तो जब फैसला सुना दिया उसके बाद वो पूछते कालू से कि भाई ये उसी दिन कि भाई ये मैंने फैसला कर दिया, तुम्हें इसके खिलाफ अपील करनी है या नहीं, या तुमने रिव्यू की दरखास्त देनी है। अगर तुम चाहते हो कि इसको रिव्यू या इसको अपील करनी चाहते हो तो मैं तुम्हें 2 दिन की 3 दिन की मोहलत देता हूं, तुम कर लो। तो फिर होता है। अब मसला क्या है कि आपको कोर्ट ने तो कोई दिया नहीं राइट, ना ये कहा कि मैं दे रहा हूं ना ये कहा कि नहीं दे रहा, तो वो आपने 2 दिन बाद उनसे कह दिया कि जी हमें रिव्यू चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर भी अगर उन्होंने इजाजत दी, अब वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे दी वो आपको कबूल नहीं है, तो ये अलग बात है। हाँ नहीं, रिव्यू को एक्सेप्ट करके अगले दिन रिव्यू का सेशन होना था। उस दौरान ये सारा मामला हुआ जो आपके सामने है कि वो रिव्यू कालू के होते हुए जज साहब की बात नहीं हो सकी। ब्रॉड जिसकी भी गलती थी, ये नहीं कह रहा कि जज साहब खुद नहीं आए, तो ब्रॉड वाले उन्होंने भी कहा कि उन्होंने ये किया था ऐसे कि उन्होंने ऐड नहीं किया, लेकिन वो रिव्यू का सेशन था ना, उस दौरान कालू साहब मौजूद थे। कालू साहब ने खुद कहा था कि जज साहब को ऊपर ले। तो जब जज साहब सारा देख रहे हैं कि जज साहब को ऊपर नहीं लिया गया, तो 2 घंटे बाद जब वो खुद ऊपर आए हैं तो उनको फैसला नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब रिव्यू पे वो बात ही नहीं कर सका कालू, रिव्यू का आपने उसको राइट दिया और रिव्यू के दौरान वो जो भी बात करना चाहता था वो नहीं कर सका, तो फिर उनको डिसीजन देना नहीं था बनता। आमर भाई तुसी है वो अच्छे कि कोई नहीं कि मसरूफ हो, लेकिन स्पीकर साहब शाम ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एक चीज़ और है कि मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर हमने इस जो सेशन है जो सलीम मीर साहब और आमिर नज़ीर साहब के लतीफ़ मीर साहब और आमिर नज़ीर साहब के सामने चल रहा है, अहमद इब्दास साहब के मामले पे, अगर कोई जज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर से हमारा एक इवेंट हुआ था, उसमें कुछ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के जज भी आया था, तो ऐसा जज जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, जो एक प्रोफेशनल है, वो एक काउंटी के मतलब उनसे अगर आई डोंट नो अब वो लेकिन कोई जानता हो, कोई इस तरह उनसे कॉन्टेक्ट किया जाए और वो कोई इसके बन सकें जज, तो इसको भी देखा जा सकता है। ये आप इनसे मशवरा कर सकते हैं, आमिर नज़ीर साहब से बेहतर बता सकेंगे। मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ जैसे जो हमारे काउंटी के जजेस हैं, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में भी हैं, जो ट्रैफिक कोर्ट्स के भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस, ये जो गोरे हैं, मतलब यहाँ के कोकेशियन, नॉट मैं ना किसी मुसलमान ना किसी अहमदी की बात करूँ, ना किसी पाकिस्तानी, ना कोई और, लेकिन इधर के जो नेटिव्स हैं भाई सुबह का सिर खपावन लगा है अपना ਪਹਿਲਾਂ ਮੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਪਹਿਲੇ, अगर वो इस गल दे उत्ते मैं तो सजेशन ही दे रहा हूँ आमिर नज़ीर साहब को और दोनों साइड्स को एक सजेशन ही दे रहा हूँ मैं, और क्योंकि असल मसला मुंसिफ की डिसाइड करने का ही है। और बाय द वे जो आपने सेशन देखा था ना उनका, तारिक चौहान साहब का डिसीजन जो उन्होंने दिया था, उसमें आप ये देखें कि असल मामला ये था कि कालू ये कह रहा था, और वो रिकॉर्डिंग भी उसके पास ही, और रिकॉर्डिंग सुनाई भी थी, कि ज़ियाद साहब ने ये कहा था कि मुझे ये हदीस दिखा दो कि जिसमें जद रंग काफरों का रंग कहा गया, ये हदीस दिखा दो। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। क्यों पटने लगे? नहीं, ये हफीज ने एक छोटी सी बात की थी ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तारिक चौहान साहब ने ज़िया रसूल साहब ने ज़बानी बात की, बहुत अच्छा ईमान दे नाल
एक मिनट से एक बात मुझे खत्म। तो जो ज़िया ने ज़बानी बात करते हुए एक रिकॉर्डिंग तो सुनाई थी, लेकिन उसने ये कह दिया कि शर्त उसको शर्त इस पे कायम हो गई थी कि पीला रंग दिखाना है, को काफरों का रंग है। इस पे ज़िया ने कह दिया था कि नहीं, उसने बोला था ये रंग को फाड़ के मैं उसी पे आ रहा हूं, पूरी बात करें ना। नहीं मेरी बात सुन लेना। जो उसने रिकॉर्डिंग सुनाई थी ना कालू ने, उसने ये कहा था कि जर्द रंग काफरों का रंग है। ये हदीस ज़िया साहब कह रहे हैं ये हदीस दिखा दो तो 1 लाख रुपया दूंगा, ठीक है। ये उसने रिकॉर्डिंग कालू ने सुनाई। ज़िया ने इसके काउंटर पे ये रिकॉर्डिंग सुनाई या ये बात सुनाई कि उसके बाद जो बातें हुई हैं, ठीक है, उसमें ये बात हो रही थी कि नहीं ये जर्द रंग जो है ये अरबी में ये लफ्ज़ है तो ये वाला लफ्ज़ दिखाना है, और सही मुस्लिम की हदीस दिखानी है या सही हदीस दिखानी है। तो इस पे कालू ने कहा था कि ये बातें बाद में हुई थी, जब उसने एग्जैक्ट अल्फाज सुनाए थे कि उसने जब पीले रंग की कहा कि काफिरों का रंग है, ये हदीस दिखानी है, इस पे 1 लाख रुपया का उसने कहा था कि मैं 1 लाख दूंगा। उस पे जब कालू ने हदीस दिखा दी, ठीक है, उसके बाद ये बातें हुई हैं, ठीक है। ज़िया रसूल ने नहीं जी जनाब, इसी बात तो उस मुनाजरे के अंदर शर्त लगी थी और किस पे लगी थी कालू की बात आपके बंदे साहब आधी बात सुनाते हैं। ज़िया भाई ने पूरी रिकॉर्डिंग चलाई थी। मैं दोनों ज़िया ने आपके बंदे तो काट के करते हैं ना, हमारे बंदे ने तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई थी। आपके बंदे ज़िया ने कहा था, मैं कह रहा हूँ ज़िया ने कहा था कि ये जो बात है कि उसके बाद जो बाकी बातें हुई थी ये मैंने उसके हदीस दिखाने से पहले मैंने कही है, ठीक है। मैंने ये जो बातें हैं कि ये लफ्ज़ अरबी का दिखाना है ये शर्त तय होने से पहले मैंने कही है और उसके हदीस दिखाने से पहले कही है, ठीक है। यहाँ पे तारिक चौहान साहब का काम बनता था कि वो पूरी वीडियो को देखते बजाय और देखते कि क्या ये हदीस से पहले उन्होंने कहा है, जो ज़िया साहब कह रहे हैं कि उन्होंने हदीस दिखाने से पहले और शर्त तय होने से पहले ये बातें कही हैं, या ये हदीस दिखाने के बाद बातें कही हैं। तारिक चौहान साहब ने वो वीडियो ही नहीं देखी। आपने देखे ना, तारिक चौहान साहब ने ज़िया साहब की ज़ुबानी बात बना हुआ है अपना अमर भाई है वो आवाज आ रही है। अब तो वैसे वो चले गए फीस शेख साहब, खत्म हो गई गाल यार। तुझसे कर यार ना दिमाग दी दे बना अल्लाह ना ना यार। देखें बात सुने, जो बात कोई समझ नहीं होती ना, जो दलाइल वगैरह होते हैं और किसी भी बात को समझना होता है उसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। अगर आपके लिए वो कहते हैं ना, एक गांव में एक बंदा गया तो वो किसी को ना अल्फ बे पे सिखा रहा था। अल्फ उसने कहा अल्फ, कहो बे उसने कहा बे, कहो पे उसने कहा पे, कहो ते उसने इधर से बट्टा पकड़ा रख के अगले को मारा कि मेरा सर तू फाड़न लगे हैं, मैं नहीं पढ़ना। तो यही हाल जो है ना, ये एक मसला होता है। हो गया ये हाल हो गया तेरी तालीम तो मैं अदब में सिर ते पट्टा मारे आई। अगर आप इल्मी बात करते हुए आपको अगर सर दर्द होती है तो बेहतर है आपकी बस की बात नहीं है, बेहतर है कि आप पहले थोड़ा सा सुकून वाले काम करें, बस से आप निकालना क्या एंजॉय किया करें, या ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ईमानदारी से मौका मिले तो गालियां निकालिया करें या हंसी ठट्टा पे चले जाया करें। इल्मी बातों से आप परहेज किया करें, वरना फिर ऐसी आपको सर दर्द रहेगी मुसलसल। चले मैं बजाना चाहता हूँ, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। शुक्र कोई पानी ते चाह नाल गोली डोलपरी नहीं ले लेना। आप भी दवाई पी के सो जाए। अब मैं दवाई ले सब गोलियां ले सब मेरे अल्लाह जाने हालत आपकी ज्यादा खराब ना हो जाए। तेरी दवाई पी के सो जाओ भाई। सुन के मेरे सिर ही दर्द हो गया। चलो अल्लाह हाफिज, बाय। एवें लगा सिर खपावनी यार, सुबह दी सुन के कड़ियाल आया होंदा। आमिर भाई तुसा मौजूद हो? मलिक साहब हम दोबारा सुन लो। जिस टाइम कोई बंदा गल करता है तुसां विच नहीं बोलना, ठीक हो गया। वो लगे असी 2 घंटे तो अमर भाई दी वाए ते मैं फिर मसरूफ हो गया। वो ना कल नूं कहन कि अपनी बरात दे आके अमर साहब है गए ने ते मरान साहब आके फिर बोलन लग पे ने, ठीक
के लगी ऐसी सुन लगी ते भाया ना ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਭਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ की वाक्य है आमिर भाई वो वही बातें कर रहा था वो कालू को वो ਚਲੋ आगे ने ਜੋ सच्चा ਮਰਜ਼ੀ बनाने ਜਾ की ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਾਨ कोशिश ਸਾਹਿਬ कर ਕਹਿੰਦੇ रहा ਨੇ था ਬਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ वो कालू को सच्चा बनाने की कोशिश कर ये रहा था इंज कि बनता सच्चा बनान ते ओनू इंज बनदा पे सच्चा ये हो गया उन्होंने बाद वाला वो रंग दिखाया उन्होंने बाद वाली की बात खत्म हो गई यार पहले भी इसके ऊपर 3 हफ्ते हमने सिर खपाया है अब बात खत्म हो गई अल्लाह खैर चलना अभी नई जो बात है हाँ अगली बात करें हाँ अगली अभी बात जो हाँ वो बात खत्म हो गई है लेकिन पता नहीं इसके सर में इतना पानी है कि मेरे ख्याल है समुंदर से भी ज्यादा है सुबह से ये बल्कि रात से ये मुझे 4 बजे जाग हुई है आज सुबह ये 4 बजे से ये बंदा शुरू हुआ है अल्लाह देते यकीन करो एक बारी तो बंदे दी जबान ही थक वेंदी है लेकिन ये बंदा थकदा ही नहीं उका मैं 10 मिनट 15 मिनट बोला तो मैं ना बस हुई मैं इस ज्यादा आगे नहीं बोल सकता कि नहीं बंदा लगातार 10 घंटे से बंदे ने बोल दिया हो गए ने ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਓ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਨਾ ਲਵੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਅਮਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਅਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਕਣਾ ਨਹੀਂ ਝਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੱਕ ਨਹੀਂ ਬਈ ਥੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ Ma anche io avevo lavorato al mare, anche io vendevo orecchini, collana, bracciali, roba indiano. È un lavoro di merda. Sì, ti giuro, sì. Ma ce l'ho ancora amici che mi chiamano ogni tanto. अल्लाह से यकीन करो कोई ये मुंह बोलता है बंदा गल खत्म हो गई है पहले 3 हफ्ते उस गाल दे उत्ते रोला पिया हर बराड़ ते जिधर जाओ 1.5 लाख इत्थे रख आ गया 1.5 अल्हम्दुलिल्लाह लाख क्योंकि सच दा बोल बाला होंदा है ते साडा हक इत्थे आ गया बस गल खत्म हो गई हुन नवी गल करो उन्हों किवें काउंटर करना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੂਣਾ ਹੈ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਹੈ ਮਲਾਇਆ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਇਹ 2 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ सन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ सन ਅਗਲਾ ਓ ਨਮਸਤੇ ਭਗਵਾਨਮ ਸਵਾਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਆਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ बड़ी आगे मुसलमानों के खिलाफ इतनी उगलदा है इतना जहर उगलदा है ਇਹ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜੜੀ ਜਾਤ ਮੈਨੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੰਜੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਿਰ ਵਹਾਬੀ ਨੇ ਕਾਫਿਰ ਸੁन्नी ਨੇ ਕਾਫਿਰ ਇੱਥੇ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ मैं कल गया इसकी बराड़ ते कहना सो सलीम मीर मैं आख्या मैंने आपके साथ बात करनी है तो आदे मेरे नाल गल कर मैंने आख्या मैं के आमिर भाई नाल जेड़ा तोड़ा बरोला चल रहा क्यों नहीं खत्म करेंदे
वो नहीं तो उन्होंने बल्कि वो मैंने आपको भेजी भी है आमिर भाई ना। जी सुहेल नासिर साहब नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। सुहेल नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे नमस्कार, मीठे नमस्कार, प्यारे राम वहाबी राम, बरेलवी राम देवबंदी राम, अहले तशी मुसलमानां नु नमस्ते, ते जमाए सत उम्मत श्री मुसलमाना अकाल। दी खिदमत में निहायत ही मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ है। राम राम जी, राम राम। अच्छा जी, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि जी इस मामले को मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। जो बाशऊर अहमदी मुसलमान है वो तो हम कोयले की जमीन पे छलांगे लगाते हुए देख के बड़ा ही एंजॉय कर रहे हैं हम इस जेड़ी चीज गल को। करे ना अहमदी मुसलमान भाई, क्या सूर नु बकरा आखण नाल क्या सूर बकरा हो वेंदा, ये सूर हलाल हो वेंदा। ओ यार, आधा घंटे बाद बारी आई है तो वो भी नहीं पूरी लेंगे। चल मैं एक गल पूछनी है, ठीक हो गया, चल हुन टाइम तेरा है हुन। दूसरी बात यह कि अभी इतना बड़ा एक हादसा हुआ है कि जी हर तरफ एक बड़ा केस हुआ कि एक चढ़ते सूरज को अमावस की रात साबित कर दिया गया कि जी इधर भी जर्द उधर भी जर्द, हर पासे जर्द जर्द ही सी। लेकिन जो आमिर वाबी पाइन है वो इस तरह का कोई मामला चाह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह का एक स्टेज दोबारा लगाया जाए कि वकील की एक करना बात जज। कहूंगा, अगर आप कहेंगे ना आमिर वहाबी भाई या फलाना शिया भाई, तो मैं आपको कहूंगा सुहेल मिर्जाई। बिल्कुल मुझे कबूल है जी, मुझे आप किसी भी निस्बत से बुला सकते हैं, मेरी तरफ से खुला हाथ है। तो जी इसी तरह का मामला है, ये बेसिकली एस्पेक्ट है आमिर वाबी पाइन का और मीर लतीफ साहब का। ये अगर इन दोनों को आपस की अंडरस्टैंडिंग से ही हैंडल कर लें, बाकी हम तो इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह पूरी बात करना आमिर वाबी भाई तो मीर लतीफ मरजई मरजोटा ऐसे बोलो मरजोटा। दूसरी बात ये कि इसका जो जज होता है वो आम तौर पे पूरी उसने किताबें पढ़ी हुई होती हैं, वो एक जज की सीट पे बैठता ही इसलिए है कि उससे नीचे के जितने भी केसेस वगैरह आते हैं उस पे उसका अबूर होता है। अब यहाँ पे कोई मुझे ऐसा बंदा दिखाए जिसका क्रिश्चियनिटी पे पूरा अबूर है, वहाबियत पे पूरा अबूर है, शियत पे पूरा है, अहमदियत का पूरा अबूर है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक फैसला या साले सिर्फ फैसला करने का हक उसी के पास हो सकता है जो सारे फिरकों से, सारी जो भी है मामलात उनसे बखूबी वाकिफ हो। और अहमद इदा साहब ने इतनी बड़ी एक किताब लिख दी, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किताब लिखने का मकसद क्या था। ये इसी तरह से है कि जैसे 3 ऑप्शन होते हैं कि जी शबी दे के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबी बदल के किसी और को सलीब दे दी गई, या वो सलीब तक पहुंचे ही नहीं, अल्लाह ताला ने उनको पहले ही सलीब से महफूज कर लिया, या तीसरा ऑप्शन जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है, जो मैं समझा हूँ कि जी ईसाइयों ने सलीब तो दी लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सलीब पर वफ़ात नहीं दी। उनकी वफ़ात जिस तरह जमाती मौक़िफ़ है कि वो कश्मीर तक गए और वहाँ उनकी वफ़ात हुई, तबलीग करते हुए, तौहीद का पैगाम देते हुए लोगों को। ये इसी तरह के मामलात हैं। बहरहाल मुझे जो मेरे अहमदी भाई हैं वो इस बात से घबराए ना, हम इस बात को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और कोयले की ज़मीन पे छलांगे मारते हुए जितने भी हमारे ये वहाबी बरेलवी देवबंदी अहले तशी मुसलमान हैं, भले ये मामला साल तक चला जाए, 2 साल तक चला जाए, हमारे लिए तो एक ये इंटरटेनमेंट का जरिया बना हुआ है। हम इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और अपने अकायद पे हमारे ईमान की मजबूती भी हो रही है और इस बात पे यकीन भी हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस जगह इस्लाम अहमदियत के साये में खड़ा किया हुआ है वो साया हमारे लिए बड़ा बाबरकत और एक बड़ा पुरलुत्फ साया है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने का जी। सुहेल मिर्ज़ोटे बात अभी करेंगे आपके साथ। नहीं भाई जी, नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैंने इसकी गुफ्तगू सुनी है, कोई बात किसी सिरे पर नहीं लगी है। जो आखिरी बात है इसकी मुझे समझ ही नहीं कह रहा है। हम एंजॉय करेंगे तो हमारी पंजाबी की मिसाल है कि एक बेवकूफ के पिछवाड़े ते आके जम है तो उसे नहीं आख्या पटा, उस आख्या छावा तेरे बैसा। इनकी मिसाल यही है। स्वाद लेंदी लेतर खाने रहा एंजॉय पे करने हैं।
अच्छा जी, एक हर बात और बात मैं पे इजाजत बेइज्जती चाह रहा था, उसके बाद मैं बिजी होने लगा हूँ जरा आधे घंटे के लिए। दूसरी बात ये कि आमिर वाबी पाइन तो जितने भी मेरे दूसरे मुसलमान वाबी बरेलवी देवबंदी अहले तशी मुसलमान हैं, इनको जी खुली इजाजत फजी बोलना खबीस अकीदा बकौल बशीर अहमद में। ओ यार नईम यार, अब नईम पायन यार, एक तो तुसी पता नहीं की कर देने, 2 मिनट गला करने दो भाई आकाम साहब अपने बड़ों की पैरवी तो करो ना यार। इस तरह के मेरे कोई अल्फाज कानों में पड़े थे कि जी हम इंग्लैंड में एहतजाज करेंगे, यूं करेंगे, मतलब दुनिया में एक तहरीक चलाएंगे। तो इस चीज़ की इनको खुली इजाज़त है जी। मैं तो अपने तौर पे ये इनको कहता हूँ कि ये जो उस तरह का शौक़ पूरा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अपने तौर पे शौक़ पूरा करके देख लें। पहले भी कई ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें अपना शौक़ पूरा करके पारा पारा पाश पाश हो चुकी हैं, तो ये भी इस गहती गंगा में हाथ धो यानी के कि आप हमें बता रहे हैं कि ये बात भी कर ले, मीर साहब खुद से नहीं निकलेंगे। जिस तरह से बहरहाल आपको फ्री हैंड है, आप लोग जिस तरह से अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहें या कोयले की ज़मीन पर छलांगे लगाना चाहें, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया लब कुशाई का मौका देने के अच्छा लिए। देखना, याद रखना, एहतजाज के सिलसिले में ना हम बंदे के अल्फाज उसके मुंह में ठोंस दिया करते हैं। जैसे मिर्जा साहब के मुंह में ना 1902 में वापस ठोंस दिए थे अल्फाज, ये याद रखना कि हम अल्फाज वापस ठोंस दिया करते हैं। बंदा सीधी तरह ना माने ना तो उसकी गर्दन पे नाखून रख के उसे का मुंह खुला लेते हैं और अल्फाज वापस अंदर ठोंस देते हैं। ये याद रखिएगा सुहेल साहब। हाँ जी, हाँ जी, आप ठोसने की कोशिश करें। हम नहीं, हमने तो ठोंसे हैं ना, बताए ना मिर्जा साहब के मुंह में अल्फाज वापस ठोंसे थे या नहीं? पता है मामले का कोई नहीं। 10-15 मिनट के लिए नहीं तो फिर ज्यादा अब आपका बिजी होना ही बनता है। नहीं फिर आ जाएंगे भाईजान। हमने कौन सा किलोमीटर अच्छा सफर तय बिजी है करके साथ मीर पहाड़ी की लतीफ चोटी साहब पे की चढ़ मालिश जाना। वगैरह करके उनको मैदान में लाने की तैयारी करें, क्या हवाला पेश करें अपने दावे पर, ठीक है? कोई गल है नहीं भाई, वे घुस जाते हैं वहां जहां से निकले हैं। ओदे दिमाग दा लेवल चेक करो। असा थोड़ी मिर्जैयत नु गंदियां इतने कर करके 2 महीने हो गए जेडे हम इंजॉय कर रहे हैं। वाह जी वाह। दिस इज अ न्यू टेस्टामेंट मिर्जैयत। नबी आ सकते ने, नबी आ सकते ने। मिर्जा साहब लिखदा है कोई बदबख्त मुफ्तरी ये काम जेड़ा ना कर सकदा। भीख नहीं, आपके आपके गर्दन के ऊपर पांव रख कर लेंगे। तुम्हारी मिर्जैयत की गर्दन के ऊपर पांव रख के इंशाल्लाह लेंगे। इमरान भाई 2 मुनाजरे हो रहे थे, एक पे खत्म नबूवत और एक पर हाँ क्या वहां पर भी फूल नजर वहां पर भी फूल बरसाए जा रहे थे और यहाँ पर फूल ही फूल हो रहे थे। हद हो गई यार, इनका लेवल चेक करो। बस यही है ना मिर्जैयत है। इनको खुद नहीं पता इनका अकीदा क्या, अल्लाह की कसम नहीं पता इनको, या ये छुपाते हैं या ये छुपाते हैं अकीदे। वो कल मैं पता नहीं, शायद मेरी बात आपने सुनी होगी, उनकी बराड़ पर ना सैफी वो जो ना टिंडे की बराड़ पर, तो वहां पर मैं था तो मैंने कहा मिर्जा साहब ने तो ये लिखा है कि कोई मुफ्ती और बदबख्त होगा जो मूसा की विराट पर ना। हाँ थोड़ा सा मैंने सुना था, वो आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। उसका नाम रखा हुआ टिंडा मैन है।
तो मैंने कहा हाँ भाई। तो वो कहता है कि वहां पर, तो उन्होंने आगे ये बात वाज़ह की है, कौन सी नबूवत, किस तरीके वाली नबूवत के यार, कोई ये आलू वाली नबूवत, ये अचार गोश्त वाली नबूवत, ये भिंडी वाली, यार नबूवत की कितनी किस्में हैं नबूवत की? कौन सी नबूवत का इनकार किया है वहां पर ये अल्फाज लिखे हैं किसी भी नबूवत का? भाई नबूवत क्या है? आपने कोई उनको, मेरा ख्याल है इन्होंने यही समझा है नबूवत बस एक आम सी चीज है। तो वो कहता है कि ये कौन सी नबूवत, किस किस्म की नबूवत? अस्तगफुरुल्लाह यार, को खुद नहीं पता ये इन्होंने क्या उसको मानना है क्या नहीं मानना। ये अगले दिन जो अलीम है, अलीम कह रहा था, और कसम उठाकर उसने कहा है, बराड पर मेरे सामने कहा है कि मैं मिर्जे साहब को नबी नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, लेकिन हूं मैं फिर भी अहमदी जमात में। तो भाई इनको नहीं पता ये क्या खुद मानते हैं। आमिर भाई, ओवर टू यू, तो मौजूद हो? यही बात है भैया, इनको नहीं पता। एक वही बात ना, एक पर चल रहा था कि नबी एक ना कोई नया आ सकता ना पुराना, और एक पर चल रहा था कि नबी आ सकते ने, भाई आ सकते हैं नबी। अल्लाह, अहमद भाई आप मौजूद हैं? इमरान भाई, जी जी, मैं सो रहा हूँ भाई। इसको उठाओ, इस्लाम का ये इस्लाम आईडी जो है ना, इसको उठाओ। कभी सुना नहीं है इसको, नीचे से देखा हमेशा। बस ये नहीं ऊपर है, आकर ये इनमें मैदान में जुर्रत नहीं नहीं है निकल ऊपर सकता, आकर बात करने में। वो मुखन्नस है ये। हाँ हाँ, मुखन्नस है। ज्यादा मिर्जाई ते गाल कर लवे मुसलमाना नाल, कतआन नहीं हो सकता। अभी अभी सुबह भी थोड़ी देर पहले जो मलिक की विराट पे जो था, कितनी गाली गलौज, हद हो गई, एंड हद, इतनी गाली गलौज बिला वजह, कोई जरूरत ही नहीं थी गालियां। वो एक बात, कोई भी बात नहीं, ऐसा लग रहा था मिर्जा की तस्करा पड़ी जा रही थी। ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ? ਇਹ ਮਤਲਬ कौन सी वाली, हमें भी पता चल जाएगा। ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
मतलब कैसर साहब मौजूद हो? मलिक आप कढ़ाई का ढक्कन उतारें, खोलें, बस कढ़ाई का ढक्कन खोलें, देखें मलिक साहब आ जाएंगे अभी। इंज ही करना पैना, कोई बकरा सोना जिहा लै के ना पकाना पैना, सोना जिहा दुम्बा लैके। ये तलत की ब्रॉड पे जब मलिक भाई ने जो है ना, कैसर भाई ने हल्का सा गर्म किया था इनको, और चार्जिंग फिर ऐसी हुई है कि गालियों की एंड कादियानियों की ज़बान से गालियाँ ही गालियाँ थी। आज फिर नजर देखी उकाब अपने बंदे चलियों ने गाना करी